Good evening, everyone. How are you all? I hope everyone is doing great. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and I welcome you to my science class. So, today we are learning chemistry, and chemistry, the topic is carbon and its compound. Okay, so this is fourth part of this chapter. We have learned many things about this carbon and compound. So, now we are going to learn some new concept in this chapter. So this is fourth part, okay? And that chapter belongs to class 10. So let us start our today's topic. So yes, we are going to learn about the coal and petroleum. So coal and petroleum, I think everyone have heard about this. तो सबने सुना होगा कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है? हमने अपने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में लर्न किया हुआ है, बट वी आर गोइंग टू रिवाइज इट वंस अगेन एंड वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर. Okay, so let us start. So basically coal and petroleum, so that is a fuel. We all know fuel. Okay, so first we will learn about fuel. What is fuel? So when fuel is burned, it gives heat, एनर्जी एंड लाइट. ठीक है, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो क्या देता है? वो बहुत सारा हीट देता है, एनर्जी देता है, लाइट देता है. ठीक है, so basically most of the common fuel having carbon, okay, contain carbon, and some of them is free carbon. Okay, so fuel like coke, coal, and we can say charcoal. So these are free carbon. But the fuel like kerosene, petrol, LPG, natural gases having the carbon compound. Okay, so we are going to learn about that. So here I'm writing. So here we have coal and petroleum. So yes, we are going to start with that. Okay, so here I'm going to write what I have said right now. ठीक है, अभी जो मैंने कहा उससे पहले मैं लिखूंगी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. So when a fuel born of fuel is born, sorry, it's born, wait. So yes, when a fuel, you are, yes, I need to erase this one also. Bond, the energy, okay, is released along with, क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, mainly as a heat energy and light energy. So here I'm writing mainly heat energy. Okay, heat energy. फ्यूल का क्या काम होता है? हीट प्रोवाइड करवाना, लाइट प्रोवाइड करना. ओके, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी वी कैन से. Okay, so most common fuel are either carbon, with carbon, or without carbon. Okay, so I'm going to write most common fuel are either free carbon or carbon compound. Okay, फ्री कार्बन कौन कौन से है? तो हमने एग्जाम्पल जैसा डिस्कस किया था, फ्री कार्बन में चारकोल, कोल, कोक, ये सारे क्या हो गए? फ्री कंपाउंड वाले हो गए. बट कार्बन कंपाउंड वाले क्या क्या हुए? केरोसिन हुए, डीजल हुआ, फिर पेट्रोल हुआ, एलपीजी हुआ, नेचुरल गैसेस हुआ. ये सारे क्या हो गए? कार्बन कंपाउंड्स हो गए. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे रिएक्शन होता है? सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन दैट कार्बन व्हेन बॉन्ड
In presence of oxygen, it forms carbon dioxide gas, which release, so here I'm writing, plus heat plus light. Okay, heat energy and light energy. Okay, so this is the equation. So coal, petroleum, natural gases are known as fossil fuel. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, क्यों फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं? तो अभी हम देखेंगे कि कैसे उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, कैसे वो बनते हैं। ठीक है, उनके बनने की वजह से ही, जो जिस वजह से वो बनते हैं, उसकी वजह से उनको फॉसिल्स फ्यूल बोला जाता है। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन, हाउ कोल वाज फॉर्म? तो कोल, basically coal was formed, so we are starting from coal, then we will move towards the petroleum. coal kaise form hota hai? So million years ago, due to some problem, due to some natural calamities, what happened, many plants, big tree, sorry, not plants, big trees, huge tree, क्या हुआ, वो सारे किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से सारे ट्रीज क्या हो गए, वो गिरे और अर्थ के अंदर में वो बरीड हुए। ठीक है, तो जब वो अर्थ के अंदर में बरीड हुए तो काफी टाइम तक उस वो नीचे नीचे लेयर, सॉइल का लेयर फॉर्म होते क्या। ओके, आफ्टर मेनी टाइम्स, आफ्टर मिलियंस ईयर, दैट ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि वो जो ट्रीज थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल में। ओके, so basically coal was formed by the decomposition of large tree. Okay, buried under the earth. Millions years ago. To absence of oxygen and at high temperature and pressure. Inside the earth. Wait. Pressure inside the earth. Wood was converted into कोल। ठीक है, वुड किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में। क्यों? क्योंकि जब वो बरीड हुए अर्थ के अंदर में डीप, तो वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंस था, ऑक्सीजन एब्सेंट था, प्लस टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। इस वजह से क्या हो गया, वो जो बिग ट्रीज थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। ओके, सो दैट इज अबाउट द कोल एंड हाउ इट इज formed. So now we are moving forward and we are going to learn more about that, and that is about the, so we have our next slide, and that is about the petroleum. So first we are going to know about the petroleum क्या है। तो petroleum किस word से derived हुआ है, petra, petra that means rock, okay, and oleum that means oil, petra plus oleum, okay, that combine together to form petroleum. Petra that means rock, and oil that means what,
while we all know. So dark, basically petroleum is dark, viscous and foul smelling crude oil. कैसा होता है इसका स्मेल? बहुत थोड़ा सा फॉल होता है, मीन्स की थोड़ा सा डर्टी होता है, ठीक है। प्लस वो डार्क कलर का होता है, विस्कस फॉर्म में होता है। तो बेसिकली ये क्या है? क्रूड ऑयल है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं, ओके। So it is complex mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbons mixed with water, salt, earth particle, ठीक है। इतने सारे चीज पेट्रोलियम में मिक्स होते हैं, क्या बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड, गैसियस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, along with क्या होते हैं? वाटर भी होता है, सॉल्ट भी होता है, अर्थ पार्टिकल भी होता है। ये सारी चीजें कैसे मिक्स होती है? सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म। कैसे पेट्रोलियम बना, हम जब उसके बारे में लर्न करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सारी चीजें मिक्स कैसे होती है, ओके। सो सेम लाइक कोल। कोल का क्या हुआ? जो ट्रीज थे, लैंड वाले जो ट्रीज थे और बहुत बड़े बड़े ट्रीज थे, वो जब अर्थ के नीचे दबे तो वहां से पेट्रोलियम, सॉरी, कोल फॉर्म हुआ। बट पेट्रोलियम में क्या हुआ? जो जो एनिमल्स थे, लाइक के ओशन में जो एनिमल्स थे या फिर सी में जो एनिमल्स थे या फिर छोटे छोटे प्लांट्स थे, सो जब वो उनकी डेथ हुई, दैट मीन्स कि वो जब उसके सी वाटर में सैंड के लेयर के नीचे आते गए, ठीक है, वो मिलियंस ईयर बाद उनका क्या हुआ? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड absence ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या हुए? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुए, ओके। so here we are going to write petroleum all, petroleum while or natural gas, we also obtain from that, okay. Formed by the decomposition of small plants and animals buried under the sea millions years ago. सो आफ्टर सम टाइम्स क्या हुआ? जब वो बरीड हुए तो उनके ऊपर एक सैंड का लेयर फॉर्म होते गया, वो काफी डीप चले गए, ठीक है। जब वो काफी डीप चले गए तो वहां पे क्या हो गया कि बहुत ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट हुआ, बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, प्लस हीट भी हुआ, और क्या हुआ? कुछ बैक्टीरिया, ड्यू टू एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया आल्सो, दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम, ओके। Here I'm going to write that their body converted into petroleum due to action of bacteria in the presence of of high pressure and heat, okay। पेट्रोलियम में क्या क्या फॉर्म हुआ? सो द एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सो द पेट्रोलियम दैट फॉर्म्ड गॉट trapped between the layer of the रॉक के लेयर के बीच में, वो क्या हो गया? टू लेयर के बीच में वो ट्रैप्ड हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो दे हैव सम इम्प्योरिटीज ऑल्सो, ओके। तो क्या हो गया?
ऐसे पेट्रोलियम फॉर्म हुआ. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू लर्न व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विथ अ फ्लेम. क्यों फ्लेम के साथ सब्सटेंस बर्न होते, क्या रीजन है? सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. So let me change the slide here and then we will learn about that. So here we have our third slide and that is about why do substance burn with a flame or without a flame. So a flame is a reason where combustion of gaseous substance take place. फ्लेम क्या होता है? वो रीजन होता है जहाँ की गैसियस सब्सटेंस का कम्बशन होता है. ठीक है, कुछ सॉलिड या लिक्विड भी उनका भी फ्लेम के साथ ही कम्बशन होता है. कैसे? तो वो क्या करते हैं, वो वैपोराइज होते हैं. जब उनको बर्न करते हैं तो हीट होने के बाद वो वैपोराइज होते हैं दैट मींस गैसेस फॉर्म में आते हैं. तो फिर उनका भी कम्बशन होता है, वो फ्लेम फॉर्म करते हैं. ओके, so a flame is the reason where combustion of gaseous substance take place. Okay, so here we are going to, okay, I'm going to write down about that. All gaseous substance turns born with flame. A flame, but only those liquid and solid born with a flame which after heating get vaporized. ठीक है, जब वो वैपोराइज्ड होंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे? गैसियस फॉर्म में. तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्लेम बर्निंग के बाद क्या करेंगे? फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे. ओके, ऑन हीटिंग गेट वैपोराइज. ओके, सो एग्जांपल लाइक कुकिंग गैस फ्लेम के साथ बर्न होता है. ठीक है, कुकिंग गैस हो गया, एलपीजी या फिर गैसियस केरोसिन वगैरह हो गया, वैक्स हो गया. ये सारे केरोसिन और वैक्स क्या होता है? केरोसिन लिक्विड होता है, वैक्स सॉलिड होता है. लेकिन ये भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है. क्यों करता है? क्योंकि वैक्स भी वैपोराइज्ड होता है और केरोसिन भी वैपोराइज्ड होता है. तो जब वैपोराइज्ड होगा तो क्या करेगा वो? ऑब्वियस सी बात है फ्लेम प्रोड्यूस करेगा. ओके, so here we are going to learn the types of flame. Okay, let me write down some example here. Example लिखना होगा. So गैस में क्या हो गया? एलपीजी. ठीक है, और सॉलिड लिक्विड में हम एग्जांपल किसका दे सकते हैं? सॉलिड में दे सकते हैं हम वैक्स का. और लिक्विड में किसका एग्जांपल दे सकते हैं? केरोसिन का. केरोसिन ऑयल. So this also get vaporized. Okay, so types of flame. So there are two type of flames. So we are going to learn about that. First one is blue and second one is yellow. ठीक है, तो क्या रीजन होता है कि फ्लेम टू टाइप के होते हैं? क्यों फ्लेम ब्लू होते हैं, क्यों फ्लेम येलो होते हैं? तो हमने अपने जूनियर क्लास में भी ये लर्न किया था, लेकिन एक बार और हम उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो ब्लू फ्लेम क्यों होता है? जब sufficient amount of oxygen are present there, then the flame turns blue. क्या होता है? जब sufficient amount ऑक्सीजन अवेलेबल होता है बर्निंग के टाइम में, तो क्या होता है? फ्लेम का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है. लाइक कि हम एग्जांपल लेते हैं गैस स्टोव, गैस बर्नर का. क्यों क्यों ब्लू होता है उसका फ्लेम? क्योंकि हमने देखा होगा उनके बर्नर में होल होता है दैट मीन्स कि उनको होल के थ्रू सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है. जब सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा तो फ्लेम का कैसा होगा? कलर ब्लू होगा. ठीक है, सॉरी, बट जो ब्लू कलर वाले फ्लेम होते हैं दैट प्रोड्यूस लेस लाइट, मतलब कम लाइट प्रोड्यूस करते हैं.
इसकी वजह से उन्हें नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी बोला जाता है, ठीक है। सो लेट मी राइट दैट। व्हेन supply is sufficient during the burning, during the burning, then क्या होगा, कंप्लीट बर्निंग होगी। कंप्लीट बर्निंग मीन्स कि कंप्लीट कंबशन होगा, ठीक है। जब कंबशन कंप्लीटली होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो होगा वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ओके। प्रोड्यूसिंग ओके, ब्लू फ्लेम डज नॉट प्रोड्यूस इनफ लाइट, ठीक है। उसे इनफ लाइट नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसको हम नॉन ल्यूमिनस भी बोलते हैं, ठीक है। डू नॉट मच लाइट, like GHT, so it is called to be non-luminous flame. ठीक है, क्यों नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोला जाता है? क्योंकि ये सफिशियंट लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इनफ लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। सपोज हम गैस बर्नर को जला के देखते हैं, सारी लाइट्स ऑफ कर देंगे तो उससे क्या होगा, लाइट होगा नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है। So now we are moving towards the another type of flame. So let me change the slide here. And yes, we have our next slide, and that is about the second type of flame, and that is yellow flame. Yellow flame में क्या है, वहां पे sufficient oxygen मिल रहा है, that means the complete combustion have been carried out there, over there. But in case of yellow flame, there are no sufficient oxygen supply. जब ऑक्सीजन सप्लाई सफिशियंट नहीं होगा तो क्या होगा, कंप्लीट कम्बसन नहीं होगा, पार्शियल कम्बसन होगा। पार्शियल कम्बसन होगा तो क्या होगा, कुछ सम अमाउंट ऑफ कार्बन पार्टिकल्स आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग। तो जब कार्बन जो पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे तो उन कार्बन पार्टिकल के प्रेजेंस की वजह से ही वो लाइट का कलर कैसा होता है, येलो होता है, ठीक है। येलो फ्लेम ल्यूमिनस होते हैं, क्यों? क्योंकि येलो फ्लेम लाइट प्रोड्यूस करते हैं, सफिशियंट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो ल्यूमिनस होते हैं, ओके। तो लेट मी राइट दैट यो, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई, व्हेन दो supply is insufficient, then the fuel burn incompletely. Completely, okay, producing yellow flame.
and this is caused by the glow of hot unburned carbon particle. Why unburned carbon particle produce? Because due to incomplete combustion. ठीक है, incomplete combustion के वजह से कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस होता है. तो वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, उसकी वजह से ल्यूमिनस होता है. दैट मीन्स येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है. ओके, सो येलो फ्लेम produce sufficient light right, so it is said to be luminous flame. Okay, so now we are moving forward. So we have learned about the flame, type of flame. So now we are going to learn about the chemical properties of the carbon compound. क्या क्या chemical properties है carbon compound के, उसके बारे में हम learn करेंगे. तो पहला properties क्या है, combustion और burning. So the process of burning of carbon compound in air give carbon dioxide plus heat plus light. Okay, so the process of burning of a carbon compound produce compound in AO produce CO2 plus water, that is H2O, plus heat plus what, plus light. Okay, so that process is known as what, combustion. इस process को हम क्या बोलते हैं, combustion. So is known as और burning. ठीक है, इस प्रोसेस को हम या तो कम्बसन बोलेंगे या बर्निंग बोलेंगे. ठीक है, कौन सी प्रोसेस को, जब कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर. ओके, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्लस हीट plus light. So that process is known as burning or combustion. Okay, so how we can represent this process and which one burn? So we are going to take the example of alkene. Alkene क्या होता है, एल्केन दैट मीन्स अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो वो ये चीजें देता है. तो हम अभी एल्केन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, मीथेन का एग्जांपल लेते हैं. मीथेन दैट इज नेचुरल गैस. ठीक है, तो अभी हम उसके एग्जांपल से समझेंगे. CH4 ये क्या है, मीथेन, जो कि हम नेचुरल गैस भी है अपना. CH4 ठीक है, ये नेचुरल गैस है. जब ये बॉर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 2O2 दैट इज ऑक्सीजन. जब इसका कम्बसन होगा, सो हियर आई एम राइटिंग COMBUSTION कम्बसन. तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O दैट इज आल्सो इन गैसेस फॉर्म, वाटर वेपर प्लस हीट plus light.
इसको क्या बोलेंगे हम? बर्निंग बोलेंगे या कम्सन. ओके, so basically methane is alkane. Alkane, that is unsaturated carbon compound. Okay, now we are going to move forward and we are going to learn a new concept here. So let me change the slide first and then we will learn about that. So here we have our next slide. And that is about the substitution. So that is the second properties of carbon compound. Second properties कौन सी है? Substitution reaction. Substitution reaction क्या होता है? So saturated hydrocarbons are quite unreactive. थोड़ा सा unreactive होता है. But क्या होता है? क्लोरीन. क्लोरीन क्या करता है? एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसका प्लेस ऑक्यूपाई कर लेता है, जो हमने पहले भी देख लिया था. ओके, तो जब क्लोरीन एक हाइड्रोजन को उसको हटा के उसका प्लेस ऑक्यूपाई कर लेगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा. क्या किया क्लोरीन ने? सब्स्टिट्यूट किया किसको? हाइड्रोजन को. तो बेसिकली द कार्बन कंपाउंड हैविंग दिस one chemical property and that is what? Substitution reaction. So saturated hydrocarbons are quite unreactive. Okay, so saturated hydrocarbons are quite unreactive. So saturated hydrocarbon, I think there are some issue here. However, goes, or we can write under substitution reaction. Okay. With whom? With chlorine. ठीक है, क्लोरीन के साथ. ओके, एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वहां प्रेजेंस होना कंपल्सरी है. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दैट. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगेन हम लोग एग्जांपल मिथेन का लेते हैं. ठीक है, अल्कीन का, दैट इज मिथेन का एग्जांपल लेते हैं. हम क्या करेंगे? Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, जब सनलाइट के प्रेजेंस में पास करेंगे, क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा किसमें? CH3Cl में कन्वर्ट होगा और HCl प्रोड्यूस होगा. ठीक है, अगेन हम करेंगे, अगर इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे तो हमें और भी प्रोडक्ट मिलेंगे. जैसे कि अभी एक बार किया हमने तो CH3Cl मिला, दो बार, दूसरी बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंड टाइम क्या मिलेगा? CH2Cl. ओके, इसको क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमीथेन. क्यों? क्योंकि CH2Cl2, यहाँ क्लोरीन क्या है? दो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमीथेन. Okay, then again when we will repeat this process again, we will get this one. Fourth time we will get trichloromethane. Or we can call it chloroform also. Okay, the formula for that is CHCl3. And when we repeat this process again, fourth time अगर हम इस process को करेंगे तो fourth time में हमें क्या मिलेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड. Okay, that means CCl4, which is called carbon tetrachloride.
ठीक है, तो ये चीजें हमें मिलेगी जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होगा, दैट मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा किसके बीच में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स कि अल्केन, मीथेन और क्लोरीन के बीच में। ओके, so let's move forward and we are going to learn about the third chemical properties of the carbon. क्या कार्बन कंपाउंड का थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन दैट मीन्स कि समथिंग गॉट एडेड, नाम से ही हमें पता है क्या एडिशन में क्या होगा, कुछ तो ऐड होगा। सो द रिएक्शन इन विच अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइन विद अनदर कंपाउंड, ठीक है, किसी और सब्सटेंस से या किसी और से कंबाइन होके क्या कर लेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। ओके, so here I'm going to write about that the the reaction the reaction in which and sorry, so these are some these are the सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मिथेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बाय मिस्टेक कई जगह शायद मैंने अनसेचुरेटेड कर दिया होगा, यह अल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अल्कीन एंड अल्काइन जो होता है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सो लेट मी करेक्ट दैट। ओके, तो रिएक्शन इन विच एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन combine with another substance to give a single product is called addition reaction. ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल। ओके, एग्जांपल किसको लेंगे, तो हम एग्जांपल लेते हैं इथीन को। इथीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, तो हमने लिया एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज व्हाट, इथीन। ठीक है, जब इसमें हम अदर सब्सटेंस दैट मीन्स हाइड्रोजन से जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं और इसके लिए हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, या तो स्लो करता है या इंक्रीज करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करता है, वो क्या होता है, कैटलिस्ट का काम है। तो वो इस रिएक्शन के लिए हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट सॉरी, कैटलिस्ट क्या ले सकते हैं, या तो निकल लेंगे या पैलेडियम लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, निकल का एग्जांपल लेते हैं, निकल कैटलिस्ट। सो व्हेन इट गेट हीटेड, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH3, ये क्या बना देगा, इथेन बना देगा, दैट इज सिंगल प्रोडक्ट, विच वन इज इथेन। ठीक है, so this is about the addition reaction. So from addition reaction we are going to learn a very amazing concept. So let me change the slide first and then we will learn about that. Okay, so what is that, that is hydrogenation. Hydrogenation क्या है, so the addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon to form a single product, that is saturated hydrocarbon is known as hydrogenation. क्या हुआ, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया, किसमें, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, तो बेसिकली इन क्या होता है, जब नेचुरल, सपोज हम क्या कर रहे हैं, जब प्रिपेयर करते हैं वेजिटेबल घी, किससे, वेजिटेबल ऑयल से,
तो उस प्रोसेस में क्या कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है, हाइड्रोजिनेशन का होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है, किसके प्रिपरेशन में, नेचुरल वेजिटेबल घी के प्रिपरेशन में, किससे, वेजिटेबल ऑयल से। so here I'm going to write about that, the addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon to obtain is called hydrogenation. Okay, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन बोलेंगे, ठीक है। किस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन बोलेंगे, जिसमें कि हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन करेंगे। और ये यूज कहाँ होता है, सो इट इज used to prepare, let me erase that, it is used prepare vegetable ghee from ओके वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी प्रिपरेशन के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। सो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल कैसे कैरिड होता है, सो व्हेन वेजिटेबल ऑयल इज हीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल एंड पैलेडियम, क्या होता है, जब हीट किया जाता है उनके प्रेजेंस में, तो क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट होता है, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन फॉर दैट, इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं कैसे, सपोज ये वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, ये क्या है, आर, दैट इज अल्काइल ग्रुप। जब इसको हम हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट क्या होगा, या तो निकल होगा या पीडी होगा, दैट इज पैलेडियम कैटलिस्ट। और इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वेजिटेबल घी, that is unsaturated, sorry, saturated vegetable ghee. Okay, क्या है ये saturated होगा, so we can write down it saturated fat also. इसका स्टेट कैसा होगा, सॉलिड होगा, क्योंकि वाइल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, बट जब वो घी में कन्वर्ट हो गया दैट मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में होगा, so it will be in solid form, that is solid state. ओके और ये क्या है, अनसेचुरेटेड फैट है, ठीक है। सो यस राइट डाउन हियर अनसेचुरेटेड फैट, और ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या है ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है, सो बेसिकली क्या करते हैं, व्हेन जब हम सपोज हमें वेजिटेबल ऑयल
या सपोज अनसेचुरेटेड फैट को जब टेस्ट करना हो तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? सो कुकिंग वाइल डिकलराइज द ब्रोमीन वाटर। कुकिंग वाइल दैट मीन्स जो अनसेचुरेटेड फैट होगा वो क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर में जब हम उसे डालेंगे तो उसको डिकलराइज कर देगा, दैट मीन्स उसके कलर को गायब कर देगा। बट जो सेचुरेटेड फैट होगा वो जब ब्रोमीन वाटर में मिक्स होगा, सो द कलर विल नॉट डिसअपियर। ओके, so here I'm going to write down cooking क्या करेगा, ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज्ड कर देगा, मीन्स कि उसका कलर डिसअपियर होगा। डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, ठीक है। और बटर दैट मीन्स ये फैट, सॉलिड फैट स्टेट में जो होगा सेचुरेटेड फैट होगा, दैट मीन्स वो क्या होगा, बटर होगा। तो बटर को जब हम ब्रोमीन वाटर में डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, so here we can write butter doesn't rise bromine water. Okay, so this is all about what? This is all about the coal and petroleum and about the properties of the carbon compound, chemical properties of the carbon compound. Okay, so we will learn more in our next session. We will learn about the some important carbon compound like ethanol or ethanoic acid in our next session. Okay, so this is all for today. I hope everything is clear. सब clear है, तो मिलते हैं next class में. Till then, good night, take care, bye. Keep learning and keep smiling.